بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 7، میں آپ کو اسلامیات کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج ہم آپ کی کتاب کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات۔ تو آئیے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ بچوں، آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 73 اوپن کریں، پیج نمبر 73، تاکہ ہم اپنے سبق کی باقاعدہ پڑھائی کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس سبق کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گی۔ سبق کا عنوان ہے ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات۔ بچوں، ماحول ہمارے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ہمارا ماحول بناتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آلودگی کا مطلب ہوتا ہے گندگی۔ ماحول کی گندگی یعنی کہ ہمارے ارد گرد جو بھی گندگی ہے اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور جہاں تک ہم صفائی کی بات کریں تو صفائی کو تو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اسی سے ہمیں صفائی کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آدھا ایمان صفائی کو ہی کہا گیا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفائی کو پسند فرماتے تھے۔ اور 5 نمازیں مسلمان پر فرض ہیں اور دن میں 5 مرتبہ مسلمان وضو کرتا ہے اور اپنے جسم کو صاف ستھرا پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب میں صفائی کی کس قدر اہمیت ہے اور اسلامی تعلیمات میں صفائی کے اوپر کس قدر زور دیا گیا ہے۔ تو اب ہم سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے۔ ماحول کو آلودہ کرنے میں فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا مواد، دھواں اور روز بروز بڑھتی ہوئی ٹریفک کا شور، گاڑیوں کا دھواں، کوڑا کرکٹ، گندگی کے ڈھیر، کھادوں اور زہریلی ادویات کا غیر ضروری استعمال، درختوں اور جنگلات کی غیر ضروری کٹائی اور شہروں کی آبادی کے پھیلاؤ میں ناقص منصوبہ بندی شامل ہے۔ اسلام نے ماحول کو صاف رکھنے کی تاکید کی ہے اور صفائی اور پاکیزگی کو اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو بچوں، اس پیراگراف سے ہمیں اس بات کا واضح اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے مذہب میں صفائی کی کس قدر اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو کس قدر پسند فرماتے ہیں۔ اور ہمارے ماحول میں جو اس طرح کے اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جو کہ آلودگی کا باعث بنتے ہیں، وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ مختلف فیکٹریوں سے جو دھواں نکلتا ہے، جو گاڑیاں سڑک پر چلتی ہیں ان سے جو دھواں نکلتا ہے، اس کے علاوہ ایک آواز کی بھی آلودگی ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے ذہنوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے، جو کہ گاڑیوں کا شور ہے، گاڑیوں کی آواز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں، گندگی کے ڈھیر غلط جگہ پہ اپنے جو گھر کے کوڑا کرکٹ کو اچھی طریقے سے وہ جو ہے اس کو ڈسپوز آف نہیں کرتے، پراپرلی اس کو نہیں پھینکتے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ارد گرد کے ماحول میں آلودگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے درخت اور جنگلات جو ہیں ان کی غیر ضروری کٹائی کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پہ آبادی کا پھیلاؤ ہو سکے، اور ان درختوں کی کٹائی کی وجہ سے بھی فضا میں جو ہے وہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو اس قدر اہمیت دی کہ اس کو آدھا ایمان قرار دے دیا، اور ایک مسلمان کے لیے ایمان ہی اس کا سب کچھ ہے، تو اگر آدھا ایمان صفائی ہے تو اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ صفائی کی کس قدر اہمیت ہے۔ تو پھر ہمارا بھی دینی فریضہ ہے کہ ہم نہ صرف خود کو پاک صاف رکھیں بلکہ اپنے ماحول کو بھی آلودگی سے بچائیں اور اسے خوبصورت بنائیں۔ اب ماحول کی آلودگی کی مختلف قسم کی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو زمینی آلودگی ہوتی ہے۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا فالتو مواد نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کاشتکار حضرات زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی ہوس میں لگ جاتے ہیں اور اپنی زمینوں پر بے تحاشا کیمیائی کھادوں اور مختلف قسم کی زہریلی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جس سے وقتی طور پر تو پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے اور زیادہ فائدے بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایسی فصلیں انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور زمین بھی آئندہ کے لیے آلودگی کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو بچوں، زمینی آلودگی جو ہوتی ہے وہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ زمین کی آلودگی،
कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो भी धुआं होता है, गाड़ियों से निकलने वाला जो भी धुआं होता है, वो इस आलूदगी का बायस बनता है। इसके अलावा जब किसान जो होते हैं, काश्तकार जो होते हैं, जो अपनी ज़मीनों पर काश्त करते हैं, तो वो बहुत किस्म के स्प्रे, बहुत किस्म की कीमियाई खादें और ऐसी दवाइयाँ, ताकि उनकी फसलों को कीड़ा ना लगे या किसी किस्म की बीमारी ना लगे, तो वो जब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पर तो उनको उससे फ़ायदा हासिल हो जाता है, लेकिन वो मुस्तकबिल के लिए वो ऐसे सही नहीं होता कि वो ज़मीन जो होती है वो आइंदा के लिए आलूदगी का शिकार हो जाती है और आइंदा के लिए उसकी ज़रखेज़ी भी कम हो जाती है। और इस तरह से दवाइयाँ इस्तेमाल की हुई जो फसलें होती हैं वो भी जो होती हैं इंसानों की सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसके बाद अगली जो आलूदगी की किस्म है वो है फ़ज़ाई आलूदगी। फ़ज़ाई आलूदगी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, यानी फ़ज़ा की आलूदगी, हवा के अंदर जो आलूदगी होती है। कीमियाई सनतों के कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं, तंबाकू नोशी और बेतहाशा ट्रैफिक का धुआं फ़ज़ाई आलूदगी के अहम असबाब हैं। तो बच्चों, जो भी कारखानों में से धुआं निकलता है, जो भी रोड पर जितनी भी ज़्यादा ट्रैफिक होती है और उस ट्रैफिक का जो धुआं होता है, इसके अलावा जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं और उस सिगरेट का जो धुआं होता है, ये सारी चीज़ें मिलाकर इस फ़ज़ाई आलूदगी का जो है वो सबब बनती हैं। और फ़ज़ाई आलूदगी जो होती है वो इंसानी सेहत के लिए, इंसानी जिस्म के अज़ा के लिए, आँख कान नाक वगैरह की बीमारियाँ भी फैलती हैं उससे, और इंसानी सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और फ़ज़ाई आलूदगी से बचने का क्या तरीका है कि एक तो हम अपनी गाड़ियों को ज़रा ठीक करवा कर रखें, ताकि वो गाड़ियाँ कम से कम धुआं जो है वो पैदा करें और कम से कम आलूदगी जो है वो पैदा हो। और इसी तरह से शजरकारी के ज़रिए, यानी कि मुख्तलिफ दरख्त लगाने के ज़रिए से भी फ़ज़ाई आलूदगी से बचा जा सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्त लगाना सवाब का काम है। तो दरख्त लगाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अगर उसको एक सवाब का दर्जा दिया है, तो इसका मतलब है कि दरख्त लगाने का आलूदगी से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि दरख्त लगाने से फ़ज़ा के अंदर ऑक्सीजन की जो मिक़दार होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से इंसानों का सांस लेना जो है वो आसान हो जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार और मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी परिंदे होते हैं वो सब जो है वो आसानी से वहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के नीचे गंदगी फैलाने से भी मना फरमाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हमें भी दरख्त लगाने की आदत जो है उसको अपनाना चाहिए। आलूदगी की एक और किस्म है आबी आलूदगी। आबी यानी आप, आबी लफ्ज़ आप से निकला, यानी पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी को आबी आलूदगी कहा जाता है। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी में जहरीले कीमियाई मादे होते हैं, जिससे पानी आलूदा हो जाता है। इसके अलावा लोग बेहतियाती से नदी नालों में कूड़ा कर फेंक देते हैं, और शहरों से निकलने वाला इस्तेमाल शुदा गंदा पानी भी जब नदी नालों में शामिल होता है तो इसे आलूदा कर देता है, जिससे ना सिर्फ आबी हयात मुतासिर होती है। आबी हयात यानी बच्चों जो भी जानदार होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जो पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं और इस तरह के दूसरे जानदार होते हैं जो कि पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जब जहरीला पानी जो है उस पानी में शामिल होता है तो उस आबी हयात के ऊपर भी वो बुरा असर डालता है। ऐसे पानी से फसलों के लिए भी नुकसान होता है। अगर ऐसा पानी फसलों को लगाया जाए तो फसलें भी जो हैं वो सही तरह से नहीं उग पाती, और वो फसलें भी इंसानों के खाने के लिए सेहतमंद नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को एक नेमत करार दिया है और इसे ज़ाया करने से सख्ती से मना किया है, और पानी को ख़राब करना या गंदा करना इसे ज़ाया करने के ही मुतरादिफ है। तो बच्चों, एक तो पानी ज़ाया करना ये होता है कि हम पानी को खुला छोड़ दें, पानी ज़ाया हो रहा है, लेकिन अगर हम साफ़ सुथरे पानी को आलूदा कर देंगे, गंदा कर देंगे, तो वो भी पानी को ज़ाया करने के ही मुतरादिफ है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्ती से मज़म्मत की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हमें इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सौती आलूदगी, यानी आवाज़ों से पैदा होने वाली आलूदगी, शोर की आलूदगी, इसको हम कहते हैं सौती आलूदगी। सौती आलूदगी जो है, इससे मुराद ऐसी तमाम आवाज़ें जो हमारी समात को नुकसान पहुँचाएँ, हमें ज़हनी तौर पर परेशान करें। सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक के शोर, हॉर्न की आवाज़ें, आबादी के करीब कारखानों और मशीनों की आवाज़ें, ऊंची आवाज़ में मौसीकी और लाउड स्पीकर गैर ज़रूरी इस्तेमाल करना सौती आलूदगी जो है इसके असबाब हैं। शोर से कई नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं, लोग जहनी और आसाबी तनाव का शिकार हो जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो, बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ है। तो इस आयत से भी हमें वाज़िह ये सबक मिलता है कि हमें अपनी आवाज़ों को आहिस्ता रखना चाहिए, और अपनी आवाज़ों से किसी दूसरे को हमें
जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और गधे की आवाज़ को इसमें बुरी आवाज़ कहा गया, यानी कि ऐसी आवाज़ कहा गया जिसको सुनकर इंसानी जो तबीयत है उसके ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता। तो बच्चों, सोती आलूदगी जो है वो आवाज़ों की आलूदगी है। अक्सर आपने देखा होगा सड़क पर जब ट्रैफिक का शोर होता है, मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो है हॉर्न बजाती हैं, इसके अलावा अगर लाउड स्पीकर पर कहीं ऊंचे ऊंचे आवाज़ में मौसीकी लगी हो तो उससे हम खुद ब खुद एक जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती। तो ये चीज़ जो है, जैसे अगर आप अपने घर में भी अगर टेलीविज़न या रेडियो की आवाज़ को ऊंचा लगाते हैं तो आपके पड़ोस में हो सकता है कोई हो जो बीमार हो या उसको ये ऊंची आवाज़ पसंद ना हो, तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि आप जो भी इस तरह का काम करें वो आवाज़ अपने तक महदूद रखें, किसी दूसरे को उससे मुतासर ना करें, क्योंकि जो सौती आलूदगी है वो भी आलूदगी की एक बाकायदा किस्म है, यानी कि उससे भी इंसानी सेहत पर, इंसानी जहनों पर बुरा असर पड़ता है। तो बच्चों, इसके साथ ही हम अपने आज के सबक का इख्तिताम करते हैं। अब हम अपनी मश्क की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास कुछ सवालात हैं जिनके आपने तफसीली जवाब तहरीर करने हैं। सबसे पहला सवाल है, माहौल की आलूदगी से क्या मुराद है? तो इस सवाल का जवाब जो है सफ़ा नंबर 73 पर पहले पैराग्राफ के अंदर ही मौजूद है, जो कि मैंने मार्क कर दिया है, और वहाँ से आपने इसको देख के लिखना है। इसके अलावा माहौल की आलूदगी के असबाब बयान करें। माहौल की आलूदगी की जो भी वजूहात हैं, जो भी असबाब हैं, वो भी इसी पहले पैराग्राफ के अंदर ही मौजूद हैं, जो कि आपने यहाँ से लिख लेने हैं। उसके बाद शजरकारी से मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल था? तो फ़ज़ाई आलूदगी के अंदर ही इसका जवाब मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ मिलकर शजरकारी में हिस्सा लिया, सायेदार दरख्तों के नीचे गंदगी फैलाने से भी मना फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने के फ़ज़ाइल भी बयान किए। तो सफ़ा नंबर 74 पर इसका जवाब जो है वो मौजूद है, फ़ज़ाई आलूदगी के दूसरे पैराग्राफ के अंदर, वहाँ से आप इसका जवाब लिख सकते हैं, और मैंने मार्क भी कर दिया है। इसके अलावा शोर की आलूदगी के क्या नुकसान हो रहे हैं? शोर की आलूदगी बच्चों, जैसे कि आपने सफ़ा नंबर 74 के ऊपर ही सौती आलूदगी पढ़ा है, और सौती आलूदगी की हेडिंग के अंडर जो भी सारा पैराग्राफ है उसको आपने शोर की आलूदगी के नुकसानात के अंदर लिखना है। और इसके अलावा हम अपने माहौल को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, सफ़ा नंबर 75 के ऊपर जो लास्ट पैराग्राफ है, इसी के अंदर इसका सारा जवाब जो है वो मौजूद है कि माहौलियाती आलूदगी जो है वो एक आलमगीर मसला है, यहाँ से लेकर तो बल्कि इसमें खूबसूरती भी पैदा हो सकती है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है आपने इसके आंसर के तौर पर लिखना है, और इसको मैंने आपकी किताब के ऊपर मार्क भी कर दिए हैं। इसके बाद हम अपने मुख्तसर सवाल जवाब की जानिब चलेंगे। सवाल नंबर 2 है, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब दें, जिसमें से आपके पास जो पहला सवाल है, फ़ज़ाई आलूदगी के अहम असबाब क्या हैं? तो सफ़ा नंबर 74 के ऊपर फ़ज़ाई आलूदगी का जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी के अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। पहली लाइन के ऊपर ही, कीमियाई सनतों के कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं, तंबाकू नोशी और बेतहाशा ट्रैफिक का धुआं फ़ज़ाई आलूदगी के अहम असबाब हैं। अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब चलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के मुतल्लिक क्या हिदायत इरशाद फरमाई? तो आबी आलूदगी जो है उसी के अंदर लास्ट लाइन में इसका जवाब मौजूद है। सफ़ा नंबर 74 के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को एक नेमत करार दिया और इसे ज़ाया करने से सख्ती से मना किया। उसके बाद अगला सवाल है, आबी आलूदगी से क्या मुराद है? तो आबी आलूदगी के पैराग्राफ के अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। सफ़ा नंबर 74 के ऊपर पानी की आलूदगी को आबी आलूदगी कहा जाता है। सौती आलूदगी किसे कहते हैं? सौती आलूदगी बच्चों सफ़ा नंबर 74 के ऊपर उसी के नीचे इसका जवाब मौजूद है। सौती आलूदगी से मुराद ऐसी तमाम आवाज़ें जो हमारी समात को नुकसान पहुँचाएँ, हमें ज़हनी तौर पर परेशान करें। और आखिरी सवाल है, साफ़ सुथरा रहने वालों के मुतल्लिक अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? तो आपकी किताब के पहले पैराग्राफ के आखिर में ही इसका जवाब मौजूद है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ताला पाक रहने वालों को ही पसंद करता है, और अल्लाह ताला पाक रहने वालों को ही पसंद करता है। तो इस तरह से बच्चों ये तमाम जो सवाल जवाब हैं, इसके जवाब आपकी किताब के अंदर ही मौजूद हैं, और आपने इनको अपनी इस्लामियात की नीट कॉपी पर लिखने हैं। जो तफसीली सवाल हैं उनको भी इस्लामियात की कॉपी में लिखना है, और जो मुख्तसर सवाल है उनको भी, उनके जवाब भी आपने इस्लामियात की कॉपी में लिखने हैं। अब हम अपनी अगली मशकी सरगर्मी की जानिब चलते हैं। दुरुस्त फिक्रों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। इस सबक के अंदर से आपके पास कुछ फिक्रात दिए गए हैं। अब आपने ये बताना है कि क्या ये फिक्रा दुरुस्त है या गलत है। अगर तो दुरुस्त है तो आप इसके सामने टिक का निशान लगाएं, और अगर गलत है तो आप इसके सामने क्रॉस का निशान लगाएं। माहौलियाती आलूदगी एक आलमगीर मसला है, टिक। शोर की आलूदगी से नफ्सियाती मसाइल बढ़ते हैं, टिक।
ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے ماحول کی آلودگی کم ہو جائے گی، ٹک۔ صفائی کا خیال رکھنا صرف حکومت کا کام ہے، غلط۔ اور آخری ہے پاکیزگی نصف ایمان ہے، ٹک۔ تو اس طرح سے بچوں یہ جو ایکٹیویٹی ہے آپ نے اس کو اپنی کتاب کے اوپر ہی حل کر لینا ہے۔ نیکسٹ جو ہماری مشقی سرگرمی ہے وہ ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ کے پاس کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان کے آنسر کے طور پر 4 آپشنز ہیں اور ان آپشنز میں سے آپ نے درست آپشن کو ٹک کرنا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کو اسلام میں کیسی حیثیت حاصل ہے؟ سطحی، بنیادی، آفاقی، ادنا۔ درست جواب ہے بے، بنیادی۔ بنیادی کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو نصف ایمان قرار دیا ہے؟ شجرکاری، خوشبو، آہستہ بولنا، صفائی۔ درست جواب ہے صفائی۔ صفائی کو آپ ٹک کر لیں گے۔ نیکسٹ، قرآن مجید میں کس آواز کو بری آواز کہا گیا ہے؟ شیروں کی، گیدڑوں کی، گدھوں کی، کتوں کی۔ درست جواب ہے گدھوں کی۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے فضائل بیان کیے ہیں؟ درخت لگانے کے، کھیتی باڑی کے، تجارت کے، صفائی کے۔ تو آلودگی کے خاتمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو جو الف آپشن ہے درخت لگانے کے، آپ نے اس کو ٹک کر لینا ہے۔ اور لاسٹ ہے قرآن مجید میں بولنے کا کیا ادب بیان کیا گیا ہے؟ اونچا بولو، آہستہ بولو، کم بولو یا زیادہ بولو۔ تو درست آپشن ہے آہستہ بولو، تو اس کو آپ نے ٹک کر لینا ہے۔ تو بچوں اس طرح سے یہ جو ایکٹیویٹی ہے آپ نے اس کو اپنی کتاب کے اوپر ہی سالو کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے گھر کے لیے کچھ کام نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے سبق کی دوبارہ سے پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مشقی سرگرمیاں ہیں آپ نے ان کو کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے، جیسے کہ درست جواب پہ ٹک کریں اور ٹک کراس، یہ سارے جو ہیں آپ نے ان کو اپنی کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ اور جو تفصیلی جواب ہیں اور جو مختصر سوال جواب ہیں آپ نے ان کو اپنی اسلامیات کی کاپی پہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ Students, I hope you understand my lecture. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.